قابل احترام دوستوں، بھائیوں، محترم مولانا محمد سلیم صاحب کی دعوت پر ماشاءاللہ آپ کے مدرسے میں ایک بار پھر حاضری ہوئی۔ محترم بھائی محمد عرس صاحب کے صاحبزادے محمد عامر نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، جو پہلے محمد عامر تھا اور اب حافظ محمد عامر بن گیا۔ بھائی محمد عرس صاحب کے لیے بھی قابل مبارک موقع ہے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس بچے کے استاد محترم قاری مقبول صاحب بھی، جو یہاں کے قدیم استاد ہیں، ان کی محنت ہے، ان کے لیے بھی قابل مبارک موقع ہے۔ اللہ رب العالمین اس بچے کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو حافظ بننے کے بعد عالم بعمل بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری عزتیں، عظمتیں اور کامیابیاں اللہ نے اپنے دین سے وابستہ رکھی ہیں۔ اور دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو یہ قرآن پاک بتا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمایا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک اللہ سے لے کر امت کے سامنے رکھا۔ اب میری اور آپ کی کامیابی اور سارے جہانوں کی کامیابی اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات میں ہے، اور اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اب جو اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی بنائے گا، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بنائے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے، مسلمانوں نے اللہ کے قرآن کے علم کو بلند رکھا، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو زندہ رکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھا، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، عزت و عظمت عطا فرمائی، کامیابی اور شان و شوکت عطا فرمائی، فتوحات عطا فرمائی۔ لیکن پھر جب باطل نے سازش کی اور امت مسلمہ کی زندگی سے قرآن کی تعلیمات اور نبی کے طریقے نکلتے چلے گئے، تو بالآخر پھر وہ وقت آ گیا کہ امت مسلمہ مغلوب ہو گئی، غیروں کا غلبہ آ گیا، اور آج امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے اس زمانے میں تاریک قرآن ہو کر۔ تو اگر اللہ کے قرآن کے علم کو بلند رکھیں، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو زندہ رکھیں، تو کبھی بھی ہم نہ دنیا میں ناکام ہوں گے، نہ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ یہ جو مدارس میں محنت کی جا رہی ہے، یہ اکابرین علماء جو مدارس کی شکل میں اور تبلیغ کی شکل میں محنت فرما رہے ہیں، اس محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کو وہ مقام اور مرتبہ اور وقار واپس مل جائے، یہ اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی مدد و نصرت کے حقدار بن جائیں، کہ پھر اللہ کی طرف سے ان کو وہی شان و شوکت مل جائے، وہی کامیابی، عزت و عظمت اور وہی سعادت ان کو حاصل ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ میری اور آپ کی ہر طرح کی کامیابی اللہ نے اس قرآن میں رکھی، یہ دینی تعلیمات میں رکھی، جو ان مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہا، جو نبی کی احادیث پڑھائی جا رہی ہیں، جو قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگ رہی ہیں، یہ ساری محنت کا خلاصہ یہ مدارس کا یہی ہے کہ امت مسلمہ کو روشنی مل جائے، وہ تعلیم مل جائے، وہ کامیابی کا راستہ مل جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے قرآن کے بغیر ہمیں عظمت نہیں مل سکتی۔ یہی اللہ کا قرآن ہے جس سے ہمیں روشنی بھی ملے گی۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ فرماتے ہیں
हमने इस कुरान को इसलिए नाजिल किया कि इसके जरिए से हम तुम्हें रोशनी अता करेंगे, तुम्हें जुल्मतों से निकालकर उजाले अता करेंगे। इस कुरान के जरिए से हम तुम्हें पस्तियों से निकालकर ऊंचाई अजमत अता फरमाएंगे। हम इस कुरान के जरिए से तुम्हें नाकामियों की दलदल से निकालकर तुम्हें कामयाबियां अता फरमाएंगे। तो इस कुरान के जरिए से ही मेरे भाइयों हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। जिस चीज की भी निस्बत कुरान से जुड़ेगी, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। इंसान अगर इस कुरान को समझ ले और अपने सीने में बसा ले और इस पर अमल करने वाला बन जाए और इसकी तहजीब को समझ ले और इसकी तालीमात पर अमल पैरा हो जाए, तो इंसान तो वैसे ही अशरफुल मखलूकात, यकीनन अल्लाह उसे और बुलंदी और इज्जत अता फरमा देंगे। और फरमाया कि इंसान के अलावा भी अगर किसी भी चीज की निस्बत कुरान से जुड़ जाती है, अल्लाह उसको भी बुलंदी अता फरमा देते हैं। उलमा इकराम ने मिसाल के तौर पर समझाया कि एक दरख्त है, वो एक दरख्त काटा जाता है और उस दरख्त की लकड़ी से कुछ हिस्सा लेकर लकड़ी से एक दरवाजा बना दिया जाता है और कुछ हिस्से से एक खिड़की बना दी जाती है और उसी लकड़ी के एक हिस्से से कुरान की तिपाई बना दी जाती है, कुरान की रहल बना दी जाती है। अब अंदाजा कीजिए, आपके रास्ते में अगर दरवाजा पड़ा हुआ होगा, आप उस पर पांव भी रख देंगे, उस पर से फलांग कर भी चले जाएंगे। कोई खिड़की पड़ी होगी, आपकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई वकार नहीं, लेकिन फरमाया कि वही दरख्त है, उसी दरख्त की लकड़ी का एक हिस्सा है कि जिससे कुरान की तिपाई बना दी गई, कुरान की रहल बना दी गई। अब वो आपके सामने अगर कुरान की तिपाई रखी होगी, कभी भी आपका ईमान इसकी इजाजत नहीं देगा कि आप उस पर खुदा ना खास्ता पांव रख दो या उस पर से फनान कर गुजर जाओ या खुदा ना खास्ता उसकी बेअदबी करो, उसको यूं ही पटक दो। नहीं, बल्कि आप उसका अदब करेंगे, उसका एहतराम करेंगे और उस कुरान की तिपाई को मोहब्बत की नजर से देखेंगे कि इस पर कुरान रख कर पढ़ा जाता है। जरा सोचिए वजह क्या है, इस तिपाई को, इस लकड़ी के इस हिस्से को यह अजमत क्यों मिल गई, यह इज्जत क्यों मिल गई, यह मकाम क्यों मिल गया? हालांकि दरख्त तो एक ही है, उसी से दरवाजा भी बना, उसी से खिड़की भी बनी, लेकिन उन चीजों को वो मकाम और मर्तबा नहीं मिला जो इसको मिल गया। मालूम हुआ कि इसकी निस्बत कुरान से जुड़ गई, एक लकड़ी की निस्बत कुरान से जुड़ी, अल्लाह ने उसको ये अजमत, इज्जत और मकाम अता फरमा दिया। अगर इंसान की निस्बत कुरान से जुड़ेगी तो अल्लाह उसे कितना बड़ा मकाम अता फरमाएंगे। मेरे भाइयों और अजीज तलबा, ये कुरान पाक अजीम दौलत है, ये दोनों जहानों की दौलत है, ये दोनों जहानों में इज्जत दिलाने का जरिया है। कुरान की निस्बत बड़ी ऊंची निस्बत है। आप तलबा ये कुरान वाले हैं, आपकी निस्बत इस कुरान से जुड़ी है। जो अहलियान इलाका है, आप कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मदरसे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये बहुत बड़े मर्तबे की बात है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान वाला बनाया है, कुरान की निस्बत अता फरमाई है। जो कुरान से जितना ताल्लुक रखता है, उसका अल्लाह से उतना ताल्लुक जुड़ता चला जाता है। एक मर्तबा हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु, जो बड़े कारी कुरान सहाबी गुजरे हैं, उन्हें कुरान से बड़ा इश्क था, कुरान से बड़ी मोहब्बत थी और कुरान की तिलावत बड़ी जाज़बियत के साथ और मोहब्बत के साथ कुरान की तिलावत किया करते थे। उनका कुरान पढ़ना अल्लाह को इतना पसंद आ गया क्योंकि उनके दिल में कुरान का इश्क था, कुरान की मोहब्बत थी। वो ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत किया करते, जब उन्हें मौका मिलता कुरान पढ़ा करते थे। एक मर्तबा अल्लाह की तरफ से वही आ गई, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है और आपके एक सहाबी हैं जिनका नाम उबई इब्ने काब है। उबई इब्ने काब की तिलावत अल्लाह को इतनी पसंद आई है, ए अल्लाह के नबी आप उनके पास तशरीफ ले जाइए, अल्लाह ने उनके लिए सलाम भेजा है। अल्लाह ने आपके सहाबी के लिए कुरान की वजह से, कुरान की मोहब्बत की वजह से सलाम भेजा है और ए नबी आप जाएं उनसे कुरान सुने, ये अल्लाह का हुक्म था।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से खड़े हुए हजरत उबई इब्ने काब के घर तशरीफ ले जा रहे हैं। कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, सारी दुनिया के लोग तो हुजूर के कदमों में आए, लेकिन ये कुरान की मोहब्बत देखिए, कुरान की निस्बत देखिए। अल्लाह का हुक्म आ गया, कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया खुद चल कर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कुरान पढ़ने वाले के घर पर जा रहे हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाले उबई इब्ने काब के घर पर जा रहे हैं। जब घर पर तशरीफ ले गए, किसी ने बताया उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु को कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तुम्हारे घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। हजरत उबई इब्ने काब खड़े हो गए, देखा कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घर के करीब पहुंच गए। आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह, आपने हुक्म दिया होता, आपका ये गुलाम सर के बल चलकर आपकी खिदमत में आ जाता, आप खुद चलकर मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, आपने ज़हमत फरमाई, हुक्म दिया होता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ उबई इब्ने काब में आया हूं, लेकिन खुद नहीं आया हूं, रब की तरफ से भेजा गया, मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया। फरमाया कि हाँ उबई इब्ने काब, तुम्हारे दिल में जो कुरान की मोहब्बत है, तुम जो कुरान जिस मोहब्बत और जाज़बियत के साथ पढ़ते हो, ये कुरान का इश्क अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें सलाम भेजा है। उबई इब्ने काब, तुम खुश नसीब हो, वही आई है, तुम्हारे लिए आई है, अल्लाह का सलाम लेकर वही आई है, जिब्रील अमीन ने तुम्हारा सलाम पहुंचाया है। उबई इब्ने काब रोने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा नाम लेकर फरमाया? फरमाया नाम, हाँ अल्लाह सम्मानी, हाँ उबई इब्ने काब, अल्लाह की तरफ से तुम्हारा नाम लिया गया और तुम्हारा नाम लेकर फरमाया गया है कि उबई इब्ने काब को कुरान की मोहब्बत के सदके मेरा सलाम पहुंचा दो। उबई इब्ने काब, कुरान पढ़ो, मैं तुम्हारा कुरान सुनूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका शागिर्द हूं, मैं आपके सामने कुरान पढ़ूं? या रसूल अल्लाह, हम तो आपसे सुन सुनकर सीख रहे हैं, आप कुरान पढ़ें, हम आपसे कुरान सुनेंगे। फरमाया उबई इब्ने काब, ये भी मेरी मर्जी नहीं है, ये भी हुक्म रब्बी है कि उबई इब्ने काब कुरान पढ़ेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम उनसे कुरान सुनोगे। देखो मेरे भाइयों और मेरे अजीज तलबा, ये कुरान की निस्बत, कुरान की मोहब्बत, इस कुरान को पढ़ने के सदके, कुरान से मोहब्बत करने के सदके अल्लाह का सलाम आ गया। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमा दिया। इसलिए इस कुरान की निस्बत को छोटा न समझा करें, इस कुरान के ताल्लुक को मामूली न समझा करें। ये कुरान बहुत बड़ी अजीम दौलत है, अल्लाह के करीब करने का जरिया है, ये दोनों जहानों की फलाह का जामिन है। आज भी अगर हमें अल्लाह का कुर्ब चाहिए, अल्लाह की तरफ से बरकतें चाहिए, खैरें चाहिए, अल्लाह की मदद और नुसरत चाहिए, तो इसके लिए अल्लाह के कुरान से ताल्लुक जोड़ना होगा, अल्लाह के कुरान पर अमल करना होगा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कायनात में सबसे अफजल और अशरफ और आला इंसान किसे करार दिया? जो कुरान को पढ़ता और पढ़ाता है। ये कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को पढ़ाने वाले अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नबी की नजर में सारी कायनात में सबसे अफजल और आला इंसान हैं। ये कोई आम इंसान की बात नहीं है, ये कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया की बादशाहतें, ये दुनिया की सदारतें, ये दुनिया के मनसब और ओहदे, ये दुनिया की वजारतें और ये दुनिया का ऐशो इशरत का सामान और ये दुनिया में असबाब और जो मनसब और ओहदे नजर आ रहे हैं, इन सब की कोई हैसियत नहीं है जो अल्लाह के कुरान पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने हमें कुरान वाला बनाया है, अल्लाह ने हमें कुरान की निस्बत अता फरमाई है, अल्लाह ने इस कुरान से हमारा ताल्लुक हमें अता फरमाया है। फरमाया कि ये कुरान वो अजीम दौलत है, वो अजीम दुनिया, अजीम किताब है जो इस दुनिया के अंदर भी इंसान को मकाम और मर्तबा अता फरमाती है, इंसान को मरने के बाद भी और क़यामत के दिन भी। फरमाया यही अल्लाह का कुरान काम आया करता है। क़यामत का दिन जब दिन होगा, सारी दुनिया के लोग मैदान महशर में जमा होंगे,
नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और हर इंसान का हिसाब लिया जा रहा होगा। हर इंसान की जबान पर नफ्सी नफ्सी की रट होगी, या अल्लाह मेरा भला हो जाए, या अल्लाह मेरा भला हो जाए, या अल्लाह मुझे कुछ मिल जाए, मेरे लिए कोई फलाह की सूरत बन जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस नफ्सा नफ्सी के दिन अल्लाह ताला कुरान पाक को इख्तियार अता फरमाएंगे और ये कुरान पाक सारी दुनिया के लोगों को देखेगा और सारी उम्मत पर नजर दौड़ाएगा। और जिन लोगों ने दुनिया में इस कुरान से वफा की होगी, जिन लोगों ने इस कुरान से मोहब्बत की होगी, इस कुरान को पढ़ा होगा, इस कुरान पर अमल किया होगा और इस कुरान का दिफा किया होगा, फरमाया कि उन सबको यह कुरान मुंतखब करेगा, यह कुरान पहचानेगा, एक एक का नाम लेकर खड़ा करेगा। फला फला तुमने दुनिया में मेरी लाज रखी, मुझसे मोहब्बत की, मेरे लिए अपना माल लगाया, सबको खड़ा करके अल्लाह के हुजूर पहुंचेगा। या अल्लाह ये वो लोग हैं जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत किया करते थे, अल्लाह मुझे पढ़ा करते थे, मेरी तालीमात पर अमल किया करते थे, या अल्लाह मेरे लिए अपना माल लगाया करते थे, मदरसों की तामीर में हिस्सा लिया करते थे, या अल्लाह तलबा पर शफकत किया करते थे। या अल्लाह ये कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग, मुझसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इन्होंने दुनिया में मुझसे वफा की थी, अल्लाह मैं आज इनसे वफा करना चाहता हूं। अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी लाज रखी, आज मैं इनकी लाज रखना चाहता हूं। अल्लाह फरमाएंगे मेरे कुरान तुम सच कहते हो, आज तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी, तुम क्या चाहते हो? ये कुरान कहेगा या अल्लाह ये मेरे महबूब हैं, मेरे चाहने वाले हैं, अल्लाह मैं इनको जन्नत दिलाना चाहता हूं। हदीस में आता है अल्लाह ताला अपने कुरान की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। जितने लोग भी इस कुरान ने खड़े किए होंगे, जिनको इसने पहचाना होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, इन सबको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हमें दुनिया भी बनानी है और अपनी आखिरत भी बनानी है तो इस कुरान से वफा करें, इस कुरान पर अमल करें और इस कुरान की नशर व इशाअत और कुरान की आबियारी के लिए, कुरान की तालीम और तबलीग के लिए अपना किरदार अदा करें। वो एक हदीस मुबारक अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि जब क़यामत का दिन होगा और वो सुनहरी ताज लाए जाएंगे जो दुनिया के सूरज से भी आगे बढ़ जाएंगे, दुनिया के चांद से भी उनकी चांदनी आगे बढ़ जाएगी। लोग हैरान होंगे ये इतने अजीम ताज किन के सरों पर रखे जाएंगे। लोग आपस में बातें करेंगे कि यकीनन ये अंबिया इकराम के लिए ताज आए हैं। ऐलान होगा अंबिया इकराम का मकाम और मर्तबा अपनी जगह पर, उनके लिए ये ताज नहीं आए। फिर लोग बातें करेंगे कि सहाबा इकराम के लिए, कुछ कहेंगे शुहदा के लिए, कुछ कहेंगे सुलहा के लिए हुक्म होगा, उनका मकाम और मर्तबा अपनी जगह पर, उनके लिए नहीं है। लोग हैरान होंगे कि वो कौन खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनके सरों पर ये ताज सजाए जाएंगे। कुछ देर के बाद ऐलान किया जाएगा, कहां है हाफिज कुरान के वालिदैन, कहां है हाफिज कुरान के वालिदैन। और फिर हुक्म होगा खड़ा किया जाए हाफिज कुरान के वालिद को और वालदा को, और फिर हुफ्फाज के वालिदैन खड़े होंगे और अल्लाह का हुक्म होगा और उनके सरों पर ये ताज सजा दिए जाएंगे। लोग रश करेंगे, लोग रश की निगाह से देखेंगे कितने अजीम लोग हैं। आज के दिन इनके सरों पर ये ताज सजा दिए गए और फिर अल्लाह का हुक्म होगा इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मेरे भाइयों, यह हाफिज कुरान होने की वजह से, मेरे अजीज तलबा आप कुरान पढ़ रहे हैं, यह कुरान का इनाम दुनिया में भी इनाम है और आखिरत में भी इनाम है। इसीलिए कभी भी दुनिया की आर्जी चमक और दुनिया की आर्जी इन चीजों की तरफ देखकर दिल में कभी भी एहसास कमतरी न लेकर आए कि हमारे पास दुनिया के असबाब की कमी, दुनिया के पास बहुत कुछ है, हमारे पास नहीं है। कभी भी दिल में इसका एहसास भी नहीं आना चाहिए। आपको अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा दिया और वो कुछ अता फरमा दिया जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। ये दुनिया तो आर्जी है, ये दुनिया की चकाचूंद आर्जी है, ये दुनिया के मनसब और ओहदे आर्जी हैं, ये दुनिया में जो भी कुछ शान और शौकत नजर आ रही है ये सब आर्जी और खत्म हो जाने वाली। लेकिन ये कुरान की निस्बत तो ताहयात रहने वाली, बल्कि मरने के बाद भी काम आने वाली है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने कुरान वाला बनाया है, कुरान की निस्बत अता फरमाई है। तो एक तो ये
तमाम तलबा भी और जो मुताल्लिकीन हैं वो तमाम इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह ने आपको जो कुरान अता फरमाया, कुरान की मोहब्बत अता फरमाई, तो इस मोहब्बत को कायम रखना है और इस कुरान की लाज रखनी है और इस कुरान से वफा करनी है और इस कुरान पर खुद भी अमल करना है और दूसरों तक भी इस कुरान के पैगाम को आम करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसके साथ साथ हम सब की ये जिम्मेदारी है कि ये जो मदारिस हैं, ये मदारिस जो दीन की हिफाजत के किले हैं, ये मदारिस जो दीन की छावनियां हैं, इन मदरसों के जरिए से सारे खैर के काम आम होते हैं। इन्हीं मदरसों से हुफ्फाज भी पैदा होते हैं, इन्हीं मदरसों से कुर्रा पैदा होते हैं, इन्हीं मदरसों से उलमा पैदा होते हैं, इन्हीं मदरसों से आगे चलकर फिर मुबल्लिगीन पैदा होते हैं। दीन की सारी शाखें यहीं से जिंदा होती हैं। इन मदरसों को कायम और दायम रखना, इन मदरसों के साथ ताल्लुक को मजबूत रखना, यह यही है। माशाअल्लाह थर के दूर दराज के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान हासिल कर रहे हैं। यह अल्लाह की तरफ से कबूलियत है। अल्लाह ने इस इदारे को कबूल फरमाया। शहर से दूर एक इलाके में, पसमानदा इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ये इन हजरात का खुलूस है, आप हजरात का ताउन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मेयारी अंदाज में यहां पर काम हो रहा है। कुरान पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ असली तालीम भी दी जा रही है, फिर आलिम का कोर्स भी कराया जा रहा है। जो बड़े बड़े शहर के मदारिस में जिस अंदाज में काम हो रहा है, किया दुनिया के तकाजों पर खर्च किया, वो माल खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के घर में, मदरसे में जो माल लग जाएगा ये खत्म नहीं होगा, ये सदका जारिया रहेगा। जिंदगी के अंदर भी खैर और बरकत का बाइस और सदका जारिया, और फरमाया मरने के बाद भी जब हम वो खुश नसीब हो कि जिसने अपना माल अल्लाह के घर की तामीर में लगाया था, मस्जिद की तामीर में लगाया, मदरसे की तामीर में लगाया, मदरसे की जरूरियात पर लगाया, मदरसे के तकाजों को पूरा करने पर तुमने अपनी ताकत के बकदर जो माल लगाया था, अब उस मदरसे में अल्लाह का कुरान पढ़ाया जा रहा, वहां पर दीन का काम हो रहा है, वहां पर अमल करने वालों को आखिरत के लिए भी सरमायाकारी करनी है। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने माल को अल्लाह के घर में लगाएं। माशाअल्लाह यहां पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन तामीरात जाहिर है कम है। जितनी तलबा की जरूरियात हैं, जरूरियात के हिसाब से तामीरात नामुकम्मल हैं, अभी कमरे नामुकम्मल हैं। और फिर सबसे सिस्टम होना चाहिए। आज हर घर में कुछ ना कुछ सोलर सिस्टम मौजूद है। ये अल्लाह का घर है जहां मेहमानान रसूल हैं, ये मासूम तलबा जो कल के उलमा बनने वाले हैं, इनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। तो इसलिए जो अहलियान इलाका यहां मौजूद हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि मदरसे के लिए सोलर का बंदोबस्त करें, इस मदरसे से ये तलबा पढ़ सकें। कतरा कतरा समंदर, जरूरी नहीं है कि एक ही के पास उतने वसाइल हों। अगर थोड़ा थोड़ा ताउन भी जमा करें, कोई इस मद में 1000 दे, अल्लाह ने तौफीक दी है 10,000 दे, जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है वो इतना जमा कराए कि जिस सोलर की मद में मेरी तरफ से ये ताउन है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ ही वक्त में हमारी ये जरूरत भी पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताउन करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। और नियत कर लें, तमाम साथी खुद भी नियत कर लें, और मुताल्लिकीन तो है ना अपने अपने इलाके में, ये शहर में भी दुआ सलाम होती है। इंशाअल्लाह मैं भी जाती तौर पर कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करें कि कम से कम हम फिलहाल इतना तो कर लें कि मदरसे का एक मुनासिब सोलर सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाएं। जब इंशाअल्लाह हमारी नीयत हो जाएगी और अज़म हो जाएगा और अमलन हम कोशिश शुरू कर देंगे, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आ ही जाया करती है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, फरमाया तुम जदोजहद करो, कोशिश करो, मेहनत करो। आगे फरमाया अल्लाह रास्ता खुद बना देते हैं, अल्लाह ताला मदद फरमा दिया करते हैं, अल्लाह की मदद आ जाएगी। भाई इंशाअल्लाह सब साथी ताउन करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने इस मदरसे के साथ वफा करने की, मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक बार फिर मैं भाई मोहम्मद उर्फ साहब को मुबारकबाद दूंगा, उनके बेटे को हाफिज मोहम्मद आमिर को मुबारकबाद, इसी तरह उनके उस्ताद कारी मकबूल साहब
مولانا سلیم صاحب, دیگر اور جو بھی متعلقین ہیں جو ان کے لیے کھانا بناتے ہیں بچوں کے لیے, جو یہاں کا سسٹم چلا رہے ہیں, علماء, حفاظ, سب قابل مبارک ہیں اور سب یقیناً شاعر شان اجر عظیم کے مستحق ہیں. سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو حافظ بننے کے بعد عالم بعمل بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے مکمل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.